ربي يا رحماني يا خالق الإنساني، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. أشكي عليك أحوالي وانت الكريم العالي، أصلح جميع أعمالي بالنور والإيمان. أشكي عليك أحوالي وانت الكريم العالي، أصلح جميع أعمالي بالنور والإيمان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. الروح لك محتاجة ما لي بغيرك حاجة، انت الامل وفراجة يا منزل الفرقان. الروح لك محتاجة ما لي بغيرك حاجة، انت الامل وفراجة يا منزل الفرقان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. يا ربي عليك رسولي صلاتي وسلامي، حبيب الإله يا خير الأنام. عليك رسولي صلاتي وسلامي، حبيب الإله يا خير الأنام. أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام. أبشروا أبشروا فنبينا رسول السلام. بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدنا، علمنا الإحسان والصدق والأمان وإطعام الفقير ورحمة الصغير. علمنا الإحسان والصدق والأمان وإطعام الفقير ورحمة الصغير. عليك رسول صلاتي وسلامي، حبيب الإله يا خير الأنام. عليك رسول صلاتي وسلامي، حبيب الإله يا خير الأنام. أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام. أبشروا أبشروا فنبينا رسول السلام. بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدنا، طهرنا بالصيام وساعات القيام، شوقنا للجنة ولقاء ذي المنة. طهرنا بالصيام وساعات القيام، شوقنا للجنة ولقاء ذي المنة. عليك رسول صلاتي وسلامي، حبيب الإله يا خير الأنام. عليك رسول
فيها ستكون بأيامي فرقا. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر، فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا. غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني، أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا. وبه في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد، كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحقا، كي ندرك بالهدي الحقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي، والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق. وسمت في الخيرة أيامي وتجمل قولي وكلامي، من عذب معين الإسلام أحسنت النية والخلق. فالحمد من الله تعالى من جاد بخير يتوالى، للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى. فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى، للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني، بأنك دائما مني. ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني، وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن. ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني، وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن. أضم النور حين أرى مرايا الضوء تغسلني، ثني قلبان من شغل بشيء آخر عني، بشيء آخر عني. وميض الحب ألبسني
حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري وإخوان معادننا نجوم في الدجى تسري سواعدنا جسور عطاء ربانا طلعها يغري وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتم نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي ونحن لبعضنا إخوة كروض الزهر ملتم نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي أبي بسلوكه قدوة ومدرسة لنا أمي يبادلها سعادته ويقتسمان في الهم وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني دعائم بيتنا قيم يرفرف فوقها الحب وأخلاق تشع هدى كما أوصى بها الرب دعائم بيتنا قيم يرفرف فوقها الحب وأخلاق تشع هدى كما أوصى بها الرب نقاء الحب في دمنا وميض الوصل لا يخبو فلا شكوى ولا عتب ونحن يضمنا قلب وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام أبشروا قد جاءكم خير الأنام أبشروا فنبينا رسول السلام بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدنا علمنا الإحسان والصدق والأمان وإطعام الفقير ورحمة الصغير علمنا الإحسان والصدق والأمان وإطعام الفقير ورحمة الصغير عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام أبشروا قد جاءكم خير الأنام أبشروا فنبينا رسول السلام بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدنا طهرنا بالصيام وساعات القيام
أبشروا 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 فنبينا رسول السلام بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدنا علمنا المحبة والأشواق والقرب من الله الرحيم العفو الكريم علمنا المحبة والأشواق والقرب من الله الرحيم العفو الكريم عليك رسول صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام عليك رسول صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام أبشروا أبشروا فنبينا رسول السلام بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدنا علمنا المحبة والأشواق والقرب من الله الرحيم العفو الكريم علمنا المحبة والأشواق والقرب من الله الرحيم العفو الكريم عليك رسول صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام عليك رسول صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام أبشروا أبشروا فنبينا رسول السلام अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन में तशरीफ़ लाए हुए तमाम हजरात का, तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। ख़ास तौर से इस एग्जीबिशन के ऑनरेबल चीफ गेस्ट जनाब ज़ुबैर इनामदार साहब का तहे दिल से इस्तकबाल है। सर की शख्सियत खुद उनका तारुफ है। आप मुस्लिम बच्चों की तालीम को लेकर बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं। सेंट हैरिस हाई स्कूल से आपका ख़ास ताल्लुक़ है। आप हर तरह से ताउन के लिए हमा वक्त हमा जिहद तैयार रहते हैं। ये हमारे इलाके के कॉरपोरेटर भी हैं और न सिर्फ अपने इलाके में बल्कि मीरा रोड के बहुत से इलाकों को सर ने चमकाया है। मैं आप हजरात की ज़ोरदार तालियों के बीच सर को पोडियम पर दावत देता हूँ कि सर तशरीफ़ लाएं और प्रोग्राम के बारे में कुछ कलमात कहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का साइंस एग्जीबिशन में घूम रहा था, देख रहा था, 1 नंबर से लेकर 21 नंबर तक लड़कों ने और लड़कियों ने स्कूल के जो मेहनत की है, उस स्कूल के साइंस एग्जीबिशंस को तैयार करने के लिए जाहिर सी बात है कि उनके टीचर्स ने उनको मदद की होगी, ये हकीकत है, उनके माँ बाप ने मदद की होगी। लेकिन जिस अंदाज से उस बच्चे ने उसको प्रेजेंट किया, वो बच्चा तारीफ के काबिल है। वाकई में कुरान शरीफ के हवाले से हर इस बात को यहाँ पर जो रखा गया, आपके पूरे साइंस एग्जीबिशन के हर उस मुद्दे को, हर टेबल पर जहाँ जहाँ पर भी मैं गया, वहाँ के बच्चों ने बहुत बेहतरीन तिलावत के साथ कुरान शरीफ के हवाले से उन्होंने किए हुए उस साइंस को जोड़ा। कुरान शरीफ में आज साइंस नज़र आता है हमें, आपको, लेकिन ये साइंस कुरान शरीफ के हर पन्ने पर है। ज़िंदगी इंसान की किस तरह से गुजारनी है, क्या ज़रूरतें हैं, तो उस कुरान शरीफ में बहुत ही सुनहरे अल्फाजों में लिखा गया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन लाइफ है वो। सर मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह से ये जो मोटिवेशन है, ये जो बच्चों को मौका मिलता है बोलने का, उनका अपना एक पोटेंशियल जो है वो आगे आता है। सभी को फिर से एक बार आज के इस प्रोग्राम की मुबारकबादी देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस मेरी कौम को दिन दुगना रात चौगुना तालीम के मामलात में आगे बढ़ाते चले, आमीन। अब मैं डायरेक्टर सेंट हैरिस हाई स्कूल एंड हाजरा गर्ल्स जूनियर कॉलेज जनाब खालिद खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ऑनरेबल चीफ गेस्ट ज़ुबैर इनामदार की खिदमत में टोकन ऑफ एप्रिसिएशन पेश करें।
ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं हमारे ऑनरेबल जजेस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ हाज़िरी दी। थैंक यू वेरी मच सर। सेकेंडली, I would like to thank all the participant students and their hardworking and dedicated teachers who have made this inter-school science exhibition a great success. Really, it is a proud moment for St. Harris High School and management that on a single invitation, around 9 schools of Mira Road got ready for the participation. इस मौके पर मैं डायरेक्टर सेंट हैरिस हाई स्कूल एंड हाजरा गर्ल्स जूनियर कॉलेज मिस्टर खालिद खान से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे जजेस की खिदमत में टोकन ऑफ एप्रिसिएशन पेश करें। मैं इस मौके पर जनाब खालिद खान प्रिंसिपल सेंट हैरिस हाई स्कूल से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन के बारे में अपना तासुर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ऑनरेबल जजेस, स्कूल के ट्रस्टीज़, प्रिंसिपल हजरात, टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी दिनों की तैयारी के बाद ये साइंस एग्ज़िबिशन अपने अख्ताम को आज पहुंच गई है और इसमें जिन तमाम स्कूलों ने हिस्सा लिया है, मैं उन स्कूलों के ट्रस्टीज़, प्रिंसिपल हजरात, टीचर्स और स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करके, काफ़ी मेहनत करके, बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में इस साइंस एग्ज़िबिशन में हिस्सा लिया। ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि तमाम मीरा रोड के लोगों के लिए बहुत ही इनकरेजिंग पार्ट है कि ये छोटे छोटे स्कूल भी मिल कर के एक इतना बेहतरीन शो यहाँ पे दे सकते हैं। अभी जजेस हजरात से मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो उनका ख़ुद का ख्याल है कि दिस इज़ सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर वेरी हाई स्टैंडर्ड, वेरी हाई स्टैंडर्ड, बहुत ही इनोवेटिव थिंकिंग। उसमें टीचर्स भी मुबारकबाद के लायक हैं कि जिन्होंने इतना रिसर्च करके बच्चों को इतना अच्छा ट्रेन किया कि वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सके। एक ऐसा माहौल था कुछ दिनों पहले कि स्कूल वाले एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर समझते थे। हमने ये सोचा कि कंपटीशन को अलग हटा करके क्यों ना हम सब एक ही एजुकेशन फील्ड से हैं, जुड़ के बैठें, राज़िक़ अल्लाह ताला है, बग़ैर किसी बदनियती के हम लोग बैठ करके एक दूसरे की मदद करने का फ़ैसला करें, क्योंकि ये इस बात में मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला भी उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करते। ये सोच करके ही हमने कहा हम एक दूसरे से सीखेंगे। ये चीज़ मेरे जहन में भी आई कि क्यों ना अगर हम अपने बच्चों को और अपने टीचर्स को लोकल लेवल पे ही सही अगर एक दूसरे का एक्सपोजर देना शुरू कर दें कि इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी चोरी कोई नहीं कर सकता, बल्कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो ये सोच करके हमने सोचा क्यों ना अगर हमसे कोई कुछ सीख सके, बहुत अच्छी बात है, मुमकिन है हम भी कुछ किसी से सीख सकें। तो इस चीज़ के पेश नज़र ये एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया है। ये देख करके बड़ी खुशी हुई कि बच्चों ने बहुत मेहनत से और टीचर्स ने भी बहुत ही नफासत से बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट्स बनाए। यकीनन इसमें हर बच्चा जो है काबिल मुबारकबाद है। तो ये तो बात हो गई प्रोजेक्ट्स की और साइंस की। बकिया जो चीज़ है वो हमारे जजेस हजरात ने जो देखा और ऑब्ज़र्व किया तो उन्हें ख़ुद महसूस हुआ कि कई जगह पे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किसको कितने नंबर दें। वो ख़ुद भी थोड़ा सा आपस में कश्मकश में थे कि किसको कितने नंबर दें। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इनफरादी हैसियत से अपने अपने हिसाब से दो, जिसको जो जीते वही सिकंदर वाली बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ ही देर में रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। रिज़ल्ट कंपाइल हो रहा है
और तब तक जो हैं अपने जजेस हजरात से भी उनके तासुरात सुनेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। Now I would like to introduce our honorable judges before you. For this exhibition, we had 3 judges, Mr. Shahabuddin Sheikh, Dr. Agaw Sanjay and Mrs. Soma Guha. जैसा कि सर ने अभी कंपटीशन की बात कही और मैंने देखा कि जितने लोकल के अपने माइनॉरिटी के स्कूल हैं, उन स्कूल को लेकर जीतने की कंपटीशन नहीं बल्कि सबको साथ लेके चलने की कंपटीशन मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमने बच्चों को सुना, हमने तय किया था कि बच्चों को तंग करेंगे, पूछेंगे, लेकिन बच्चों ने इतना कुछ बता दिया कि हमको हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ बताए उनको। एक बच्चा तो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बच्चा 6वीं या 7वीं 8वीं का होगा, और वो बच्चा जब रेडिएशन की बात कर रहा है तो उससे छोटे छोटे सवाल करना अच्छी बात नहीं है। और खास तौर पे मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो मार्क्स है, मार्कशीट पे जो मार्क्स होते हैं 90%, 95%, ये आपको एडमिशन दिला सकते हैं मुस्तकबिल में, अच्छे इदारे में, अच्छे कोर्सेज में आपको सिर्फ एडमिशन दिला सकते हैं। लेकिन जो तुमने आज किए हो प्रोजेक्ट करना और किताबों में से पढ़ना, जो हम किताब से पढ़ते हैं वो एग्जाम के बाद डेफिनेटली भूल जाते हैं, लेकिन जो तुमने आज प्रोजेक्ट किया, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और ये जो आप कर रहे हैं, जब आप डिग्री लेके बाहर निकलोगे तब आपके मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, आपको क्या करने को आता है, प्रोजेक्ट या आपको नॉलेज, आप क्या कर सकते हो, उनको वो चाहिए। जो तुम सीख रहे हो सचमुच में आप तारीफ के काबिल हो। मैंने जो देखा, आज समझा, और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी मैंने जज किए हैं, मैंने वहां भी देखा और आज यहाँ पर देखा, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के बच्चों से कंपटीशन कर सकते हो। अब जब भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगा साइंस एग्जीबिशन, आप डेफिनेटली उसमें पार्ट लो, आपको डेफिनेटली आपको उसमें प्राइज मिलेंगे। This exhibitions, while judging student, we 3 are quite confused to where to reduce your marks. You are quite confident in your subject. When we observe all experiment, that is really innovative and it is necessary to discuss among the young students. I really thankful to our director sir. They have given such a type of subject to students that require today. Because nowadays this small child, those who are studying in 5th standard and 6th standard, and they are talking about radiation, they are talking about organic farming, they are talking about how to control, how to convert carbon into energy. This is very big thing, very big thinking. Here sir already told you कि जो जीता वो सिकंदर। Here in front of me, those students taken part in this exhibition, all are Sikandar. You are really a rank holder. You are definitely rank holder from your school, and here you are not represent your project, you are representing your school. Myself from farmer family, and this is need of nation. And nowadays this student understand about so many issues through that. Sir already told you ki this lessons definitely you learn throughout the life. Means agitations in various food material, even pollution, even how the other food badly impact on the health, and all these things are there. So very nicely organized these exhibitions. मैं जनाब अब्दुल कदीर सर को दावत देता हूं कि सर प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और रिज़ल्ट अनाउंस करें। मोहतरम सामीन, डेस्क पर मौजूद जजेस कराम,
खालिद सर, दीगर स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, खालिद सर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है। इस शेर के साथ के अमीर शहर ने कागज़ की कश्तियाँ देकर, अमीर शहर ने कागज़ की कश्तियाँ देकर समंदर के सफ़र पर किया रवाना मुझे। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं आपके तजस्सुस को और थोड़ा बढ़ाना नहीं चाहता कि इस शेर के साथ के आँखों में इंतज़ार की शमा जला के हम, आँखों में इंतज़ार की शमा जला के हम तस्वीर बन गए थे तेरे इंतज़ार में। नतीजा मेरे सामने है और आप लोगों की तजस्सुस को मैं बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से कहना चाहूँगा जिनको इनामात नहीं मिले, बकौल शायर, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब तो फैसले की घड़ी आ गई है, अब हवाएं खुद ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, अब हवाएं खुद ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो देखते हैं कि कौन से दिए में जान है और कौन सा दिया जो है वो टिमटिमा रहा है। तो लीजिए, अब आपके सामने प्राइमरी सेक्शन में बॉयज़ की तरफ से 3rd प्राइज़ जाता है सेंट हारिस हाई स्कूल अब्दुल रहमान और शेख जैद के प्रोजेक्ट में। शहाबुद्दीन सर से मेरी गुजारिश है कि प्राइमरी में जिनको 3rd प्राइज़ मिला है सेंट हारिस स्कूल के, ये दोनों नौनिहाल बच्चे, मैं गर्ल्स की तरफ जाऊंगा ताकि थोड़ी उनकी दिल की धड़कनों को और बढ़ाया जाए। गर्ल्स प्राइमरी सेक्शन में 3rd प्राइज़ जा रहा है फलाह इंग्लिश हाई स्कूल को मरियम और शेख आयशा। प्राइमरी ग्रुप 3rd प्राइज़ फलाह हाई स्कूल। इस शेर के साथ अब मैं दूसरे पार्टिसिपेंट को दावत दूंगा। या तो मेरी बीनाई पर है खौफ मुसल्लत, या तो मेरी बीनाई पर है खौफ मुसल्लत, या नहर के पानी में शजर काँप रहा है। प्राइमरी का बॉयज़ का दूसरा प्राइज़ जाता है फलाह इंग्लिश हाई स्कूल मीरा रोड को यासिर अरफात और अंसारी नवाज़। दूसरे जो सर है जज सर, उनके अपने हाथों से इनाम वसूल करें। मैं इस शेर के साथ उन बच्चों को बुलाना चाहूँगा कि अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती, जो मंजिल का है मतवाला वो मंजिल पा ही जाता है। इस शेर के साथ प्राइमरी बॉयज़ का पहला इनाम जाता है वेस्टर्न इंग्लिश हाई स्कूल। प्राइमरी का पहला प्राइज़ वेस्टर्न हाई स्कूल को जाता है। बॉयज़, इनका नाम है मकनूजिया आकिब और चारुलिया अहमद। खालिद सर के हाथों इन बच्चों को इनामात से नवाजा जाए। अब गर्ल्स का प्राइमरी सेक्शन का दूसरा प्राइज़ जाता है सेंट हारिस हाई स्कूल के तालिबिया शेख अरीबा और शेख साइमा को। प्राइमरी का 2nd प्राइज़ सेंट हारिस को। अब प्राइमरी सेक्शन का गर्ल्स का पहला प्राइज़ इस शेर के साथ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे मेरी नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इस शेर के साथ पहला प्राइज़ जा रहा है रॉयल उर्दू हाई स्कूल, जिसकी तालिबा है मुबश्शिरा अनीस और ज़ारा फिरोज़। ये आए और अपना इनाम लेके जाए। बहुत बहुत मुबारकबाद रॉयल गर्ल्स हाई स्कूल की ये तालिबा। सेकेंडरी का बॉयज़ का 3rd प्राइज़ जा रहा है
फरहा इंग्लिश हाई स्कूल, अंसारी अबू बकर और मोहम्मद सादत ये आए और खालिद सर से अपने इनामात हासिल करें। सेकेंडरी का गर्ल्स का 3rd प्राइज जा रहा है सेंट हारिस हाई स्कूल की शेख अर्जुमन और खातिब शोएब को। सेकेंडरी बॉयज का 2nd प्राइज जा रहा है बानेगर हाई स्कूल को शेख मोहम्मद अयान। सेकेंडरी गर्ल्स सेक्शन में 2nd प्राइज जा रहा है वेस्टर्न स्कूल हाई स्कूल के मुखी अमीना और खान सना को। सेकेंडरी सेक्शन में बॉयज़ का पहला प्राइज इस शेर के साथ, यही नहीं कि ज़मीं मेरी अछूती है, यही नहीं कि ज़मीं मेरी अछूती है, मैं आसमान भी अपने नए बनाता हूँ। पहला इनाम जा रहा है वेस्टर्न स्कूल के नंदोलिया साद दुक्का असद। सेकेंडरी गर्ल्स का 1st इनाम जाता है इस शेर के साथ कि खुदा करे ना ढले धूप तेरे चेहरे की, तमाम उम्र तेरी ज़िंदगी में शाम ना हो। पहला प्राइज जा रहा है नूर जहां उर्दू हाई स्कूल की सेलिया अमीना और पटेल आयशा। रस्म शुक्रिया के लिए मैं प्रिंसिपल खालिद सर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और रस्म शुक्रिया की रस्म अदा करें। सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम स्कूलों के ज़िम्मेदारान को मैं मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ख़ास तरीके से उर्दू मीडियम स्कूल्स जिन्होंने हिम्मत करके इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, हमने देखा कि उनके बच्चे भी बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में भी बात कर रहे थे और उर्दू में भी अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इन तमाम स्कूलों को मेरी तरफ से खुसूसी शुक्रिया कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करके हम सबका हौसला बढ़ाया। और ये फला इंग्लिश स्कूल, वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल, इकरा इंटरनेशनल स्कूल, नूरजहां उर्दू स्कूल, अंजुमन मुफीदुल यतामा, रॉयल उर्दू स्कूल एंड बनेगर हाई स्कूल, इन तमाम स्कूलों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। ये चीज़ तो आपको मालूम है कि कोई भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अकेले कोई काम नहीं किया जा सकता, दिस इज़ अ टीम वर्क। और सिंस ये प्रोग्राम स्कूल सेंट हारिस स्कूल में हुआ था तो यहाँ पे हमारी टीम जो है उन्होंने बहुत ही कोऑर्डिनेशन और बहुत ही मेहनत से पिछले 15 दिन से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। ख़ास तरीके से हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस नसरीन खान, उन्होंने न सिर्फ ये कि पूरे लेटेस्ट ड्राफ्टिंग किया है, प्रोग्राम तरतीब दिया और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और तमाम उसका फॉर्मेट तैयार करने में उनका कुलीदी किरदार रहा है और उन्होंने बहुत ही जाफिशानी और लगन के साथ में इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और जो हमारी साइंस टीचर हैं हिना की, उन्होंने जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा सुपरवाइज़ किया गर्ल्स सेक्शन में, और बॉयज़ सेक्शन में इकबाल सर हमारे हैं, उन्होंने इसको काफ़ी बाय तकमील तक पहुंचाया। ये जो डेकोरेशन और जो दूसरे लवाजमात आपको यहाँ हॉल पे दिख रहे हैं, ये एक दिन या एक आदमी का काम नहीं है, इसमें भी हमारे प्री प्राइमरी सेक्शन की टीचर्स वो पूरी इन्वॉल्व हैं। शीबा, महमूदा एंड शफक मिस ने ख़ास तरीके से उस साइड का जो स्टेज है उसको डेकोरेट किया है और अब्दुल बारी साहब ने वो देखा होगा चंद्रयान, वो उसको बनाने में काफ़ी मदद की है और उसमें हमारी हिना मिस का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। नाजिया मिस ने कार्बन प्रोजेक्ट बनाया जो कि हमारे लैब असिस्टेंट हैं। साहिल सर ने चार्ट्स बनाए हैं। पीपी सेक्शन ने ओवरऑल डेकोरेशन किया और काफ़ी मदद की है इसमें। रियाज सर ने जो PSLV आपने बाहर देखा है डेकोरेशन में, हमारे कंप्यूटर टीचर हैं रियाज सर, वो उनकी ज़रिए निगरानी अमल में आया है। और उसामा सर हमारे मौलाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह DTP में और कॉरस्पॉन्डेंस में और ड्राफ्टिंग में काफ़ी महारत है उनको। और जो जितना भी आप ये DTP का वर्क, यहाँ ये चार्ट्स और मतलब ये फ्लेक्स के बोर्ड्स, बाहर का चंद्रयान का बैकग्राउंड, ये तमाम चीज़ें उनका क्रिएशन है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको किया है। हमारे एक बहुत ही एडमिन हेड
हैं मिसेस डिसूजा, बहुत कॉम्पिटेंट हैं माशाल्लाह। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी उनमें खुदादाद है और वो हर चीज़ को बहुत ही सलीके से और बहुत अच्छे से करती हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत जाफशानी के साथ में पूरी प्लानिंग और चेकलिस्ट वगैरह तैयार की, जिससे कि कोई कमी ना रह जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी जो तैयारियां दिख रही हैं उसमें उनका काफ़ी बड़ा हाथ है। शगुफ्ता मिस और शहनाज मिस ने भी बहुत डे नाइट, यानी कि हमारे यहाँ टीचर्स ने ये वक्त नहीं देखा कि क्या वक्त में हमें स्कूल जाना है, क्या वक्त में हमें घर जाना है, और दिन रात एक करके, रात में भी शॉपिंग भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रहा है, मोबाइल पे भी हो रहा है, व्हाट्सएप पे भी डिस्कशन है, और स्कूल में भी किस टाइम से किस टाइम तक रुके हुए हैं, वो सब इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया है। फैज़ान सर, हमारे मौलाना फैज़ान साहब जो अभी एंकरिंग भी कर रहे थे, वो इस साइंस एग्जीबिशन के ओवरऑल इंचार्ज थे, यानी कि पूरा प्रोग्राम उनके ज़ेरे निगरानी अमल में आया है, यानी कि A to Z कंप्लीट प्रोग्राम उनकी ज़ेरे निगरानी हुआ है। और रिफ़्रेशमेंट लंच वगैरह जो है हमारे मिसेस डिसूजा ने और शगुफ्ता मिस और मिसेस शहनाज ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। उम्मीद है कि लंच आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और हमारे सलीम सर जो कि हरफन मौला हैं, उनका वीडियो में भी रोल है, इलेक्ट्रिकल उसमें भी रोल है, और ये अरेंजमेंट्स, टेबल का अरेंजमेंट, स्टेज अरेंजमेंट, कैमरा सेटिंग, ये तमाम सारे काम, बल्कि जो काम किसी और से ना हो रहा हो वो हमारे सलीम सर कर देते हैं। इसी साथ में हमारे नाजिम सर और कमर खान साहब जो ख़ास तरीके से हमारे ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाजिम सर हमारे वीडियोग्राफी बहुत अच्छा करते हैं, और हमारे अब्दुल्ला सर जो है वो किसी हद तक एडिटिंग भी डालते हैं, और तमाम ऑनलाइन वर्क उनके ज़ेरे निगरानी होता है, और इसमें वो काफ़ी महारत हासिल रखते हैं, जिसमें वो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट भी करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे क्लास 4 वर्कर्स हैं उसमें सभी लोग, यानी ख़ास तरीके से जो शाहिद हैं हमारा जो, और सऊद हैं और अरमान वगैरह हैं, ये लड़कों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। काम को भाग दौड़, उठाना पटकना, इधर खींचना उधर खींचना, सारा काम जो है उन लोगों ने किया है। तो मैं हम तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत जाफिशानी के साथ में इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, और आप सब इसके मुबारकबाद के हकदार हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। सेंट हैरिस स्कूल का आज ये साइंस एग्जीबिशन जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन, मुझे बुलाया गया था यहाँ पर, और मैं वाकई में बहुत मुतासिर हुआ हूँ उसको देखकर कि अलग अलग स्कूल के बच्चे किस तरह से उन्होंने अपने साइंस एग्जीबिशन में अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लाया और अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन किया। मैं सेंट हैरिस स्कूल को बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ कि उन्होंने इस किस्म के एग्जीबिशन को रखा। बिल्कुल ये कहूँगा कि बार बार ऐसे किस्म के एग्जीबिशंस को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करें। थैंक यू। मैं एज ए गार्जियन ये साइंस एग्जीबिशन देखने आया। माशाल्लाह, इट्स रियली वेरी एक्सेलेंट। यहाँ सारे बच्चों ने जिस तरह से प्रोग्राम किए कि कम्युनिकेशन के बारे में, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम के बारे में, कुछ प्रोसेस ऐसे थे जिनको इन्होंने कुरान शरीफ के आयत के हवाले से इन्होंने बताया। एग्जीबिशन आज एक हॉल में हुआ है। ये हम चाहेंगे कि ये बढ़ते बढ़ते ये मीरा भाईंदर के आला हजरत ग्राउंड में हो, बड़े पैमाने पे हो, और सिर्फ मीरा रोड के नहीं, भाईंदर के नहीं, सारे थाने डिस्ट्रिक्ट के लोग और मुंबई के लोग भी यहाँ विज़िट करें और इसको बढ़ावा मिले। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट्स भी बनाए, और देख के खुशी इस बात की हुई कि अक्सरियत ने तमाम ही प्रोजेक्ट्स के अंदर जो शो करने में उन्होंने अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर पुरानी आयत का और हदीस पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का भी हवाला देते हुए इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से बताया। मैं तमाम ही स्कूल से आए हुए बच्चों की मुबारकबाद देता हूं, और उनकी मेहनत को अल्लाह तबारक तआला कामयाब फरमाए। माशाल्लाह, इस प्रोग्राम का जो इनेकाद किया गया है, इसमें जितने लोग भी आए और जितने भी प्रोजेक्ट है उसका मैं एक एक कर करके मुआयना किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मतलब फ्रूटफुल इसका रिजल्ट लोगों को मिलेगा, और काफ़ी बच्चे इसमें इंटरेस्ट थे। जो यहाँ पर आई हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत के साथ पूरी तैयारी की है। ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट जो आज का सुलगता मसला है, उस पर बच्चों ने बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट पेश किए, और हम इसकी उम्मीद करते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट जो है अगर स्टेट लेवल पे भी जाए तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ हमें प्राइजेस मिल जाए। आज हम लोग यहाँ पर आए थे साइंस एग्जीबिशन का जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था हमारे खालिद सर की तरफ से सेंट हैरिस स्कूल में, वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह ये जो एग्जीबिशन है ये साल में और भी बार कंडक्ट होना चाहिए, इससे बच्चों का स्किल इम्प्रूव होता है।
तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और सभी बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। हम लोग इस बात से खुश है कि हमारा बच्चा इस सेंट हैरिस में पढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर दीन की और दुनिया की दोनों की तालीम होती है, जो बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने जो है साइंस एग्जीबिशन लगाया और कई स्कूलों से तकरीबन 10 स्कूल से बच्चे आए और सब ने बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा तरीके से अपने अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा डेमो दिखाया और बहुत इम्प्रेस हुआ मैं इससे। माशाल्लाह, अल्लाह और उनको तरक्की दे। I like this exhibition very much. This was very nice. The school has came and asked question. The principal ma'am have came and asked question. I like this very much. Thank you. And exhibition is also looking nice and doing best and explanation is also good. Thank you. इस शानदार एग्जीबिशन को मुझे देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। मुझे यहाँ पे आकर आने का मौका मिला। यहाँ के लोग बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे एग्जीबिशंस के प्रोजेक्ट्स हैं, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। हमें यहाँ का एग्जीबिशन कैसा था, बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसमें हमने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि रोड्स पे और माउंटेन रोड्स पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे रोकने के लिए हमने अपना आइडिया यूज़ करके सेंसर्स लगाए हैं। और हमें यहाँ का सेंट हैरिस का एग्जीबिशन भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। यहाँ की डेकोरेट करना, बाकी सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी।